with the album A Divine Journey. So, It's my album and it's my originals, right? So it's a very big opportunity for me to showcase what I have, what I can do, and my love for music. So it's a very big moment for me. who are your biggest influencers? Starting with my dad, he started music for me in my life. I saw him, then I started practicing, and then from all the gurus I've learned from Fiji and abroad, uh, Mr. Vivekanandji in back in Fiji, he was my first professional guru, and then my dad was my guru also, and Mr. Pradeep Panditji, he teaches me classical music, and Shankar Mahadevan Academy. They are all influences. Any particular line that has grabbed your attention in any of these songs? Any particular line that you've loved? Every song has every song has a favorite line. For example, I would say in Kya Ho Gaya. Can we hear that from you? Yeah, sure. Okay. So the first I'll say the line. It says, "है चांद वो तारे वही फिर भी नई सी ये रात है." So it's something, I don't know. It speaks itself that everything is the same, but there's something different about it. So I'll sing only those lines. है चांद वो तारे वही फिर भी नई सी ये रात है. That's it. Were you affected emotionally by the music? Can you identify particular moments when this happened? The first hearing is always special. So I was casually at home, and I got the rough version of the song, and at that very moment, emotionally, I might say I was happy. I was excited to see how it was gonna come out. So yeah, that's the only thought I got, and that was it. Tell us something about your title. Kya ho gaya? Kya Ho Gaya is very relevant to what is happening actually right now. It's because I had never expected all this to happen. Maybe not now. This is very soon. So it's like I had passion for music since childhood, but I had never thought that I was gonna be launched by T series, and I thank them so much for this moment. So it's like क्या हो गया, क्या करने जा रही थी और क्या हो गया. We would request the directors to kindly come, directors and the producers. Can we hear some classical from you? तो स्क्रीन बंद करो ना. अरे स्क्रीन बंद करो यार. बंद करो ना इसको सर, ब्लैक आ रहा है. स्क्रीन बंद करो यार. Classical song from you. We really want. Okay, yeah, I'll sing a Carnatic song that I learned from. Re rangana kare yavandavaru yare rangana yare krishnana yare rangana kare yavandavaru yare rangana. Gopal Krishnana, Gopal Krishnana, Papa Vinashana, Gopal Krishnana, Papa Vinashana, E Parindali Kariyavandavaru, E Parindali Kariyavandavaru, Yare Rangana, Yare Krishnana, Yare Rangana, Kariyavandavaru, Yare Rangana.
I would request Monty G to come here and join us. And I would request, I don't have to give an introduction for this. Yes. I would request Shravan Ji to kindly come and join us. And I would request ma'am, please come. As we all know, Monty G has given his music to Sanjay Leela Bhansali's most of the films, like Guzarish and all. Let's have a cake cutting ceremony, please. Ma'am, we request you to kindly come. Please join us, ma'am. प्रभात उसका काम है, आज का काम थोड़ा है उसका। लाइट देना तुम। ब्लूटूथ आ रहा है उसका, बोला ना, तो पहले ही बोला ब्लूटूथ आ रहा है उसका। Can you please sing your favorite song for us? Till then the cake is getting open and it's too yummy. We can't wait, but your songs are more good than that. We know that. So can you sing something more for us? Your favorite song. So this is my, like, I call it my most sung song, because even at school when people tell me to sing, then this is the first song that comes in my mind, so I'll sing that. It's Sun Raha Hai Na Tu from Ashki. मंजिले रसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, तू मेरी ज़मानत है। Thank you, sir. Sir, सपना जी, सपना मैम। मेघना, जब आजकल का दौर म्यूजिक का थोड़ा डिफरेंट ट्रैक पे है, आप मेलोडी को वापस ला रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जो म्यूजिक डायरेक्टर्स ने जितने भी ट्रैक बनाए हैं बहुत स्वीट बनाए हैं। मुझे मतलब 20 साल पुराना म्यूजिक दोबारा से रिवाइव होता दिख रहा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मेलोडी लोग सुनेंगे और आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है। इट वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। आपका एल्बम बहुत हिट होगा और एक मैं सोचती हूँ आपसे ही शायद मेलोडी की शुरुआत होगी दोबारा से। थैंक यू। Monty sir, please. Good evening, everybody.
Meghna, all my best wishes for you. Beautiful songs and beautifully done by Deepak and Manijan. Sorry, Naveen. Yeah, Praveen. So sorry. I'm so sorry. And I think so. It's a good way to start with such beautiful songs. And all my best wishes for the future. God bless you. And now we are moving towards the moment of the day. We request our guests to launch the album. Thank you. Nicholas sir, please come. Please, sir, join the. Sir, please आइए. Sir. Meghna, will you please come in center? भाई पीछे आ जाओ. Please take the center. बाद में होगा, लेकिन इतना जल्दी, तो उसी पे बेस्ड है ये एल्बम का नाम क्या हो गया। कितने गाने हैं एल्बम में? 5 गाने हैं, उसमें से 2 नवीन मनीष सर के बने हुए हैं और उसमें से 3 प्रति पंडित सर के। क्या क्या मूड के गाने हैं थोड़ा बताइए, दोनों क्या है गाने का? सारे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं जी। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कैसे तैयारी की आपने, कब से सीख रही हैं? जी मैं छोटे से ही एक ये जो फैमिली होता है ना, उससे बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है एक पर्सन पे। तो छोटे से ही देखती थी कि घर पे म्यूज़िक का माहौल है, तो उसी से ही मेरा इंटरेस्ट जो है म्यूज़िक में वो बढ़ी। तो मैं पापा से थोड़ा जो बेसिक्स होता है वो सीखी, फिर धीरे धीरे करके मुझे पापा ने एक गुरुजी के साथ क्लासेस पे शुरू कर दिया, वो मिस्टर विवेकानंद जी। उससे मैं हारमोनियम और थोड़ा वोकल सीखती थी। फिर उसी से म्यूज़िक जब अपने बेहतर होने लगता है गाना, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि और सीखना है और गाना है। तो उसी से ही मैं फिर शंकर महादेवन अकेडमी ज्वाइन की मैंने 2014 में, और अभी भी सीखती हूँ वहीं से। और फिर यहाँ पर इंडिया में भी बहुत से गुरु हैं मेरे अच्छे। अगर मेघना की बात करें तो व्हाई डिड द नेम ऑफ क्या हो गया, व्हाट इज द वही मैं बोली क्यों क्या हो गया, ये इट्सेल्फ एक क्वेश्चन है कि क्या हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो यही है कि हम कभी सोचे नहीं थे, मैं स्पेशली कभी नहीं सोची थी कि ये सब होगा, कि टी सीरीज़ मुझे लॉन्च करेंगे या तो कुछ ऐसे। तो यही है कि क्या हो गया, सोचा था कि कुछ छोटा सा होगा, मे भी बड़ा करूँगी लेकिन बाद में। तो इसीलिए ये टाइटल क्या हो गया। मोहन पहली बार तो टी सीरीज़ को बहुत बहुत थैंक यू कि मैं सिर्फ एक बिगिनर हूँ अभी इंडस्ट्री में, और मुझे ये मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद। और यही मेरा एम है कि मैं दूसरों को इंस्पायर करूँ। जैसे कि आपने कहा मैं काफ़ी छोटी हूँ अभी, तो मेरे से भी छोटे लोग कर सकते हैं, उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए मैं ये कर रही हूँ। सर, आपने क्या कहते हैं मेघना डेवलपमेंट के बारे में, और कितना ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बैकअप करने कंपनी को या इंडिविजुअल को? देखिए, टैलेंट को करेक्ट प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक सो इट्स अ ग्रेट थिंग दैट टी सीरीज इज लॉन्चिंग अ सॉन्ग एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग, और बहुत ही अच्छा कंपोज भी किया, गाया भी बहुत अच्छा है।
So I think so. It's a great thing. T Series promoting a song. It's a very good thing. देखिए मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, कंपोजिशंस भी बहुत अच्छे लगे। थैंक यू फॉर ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्होंने ट्रैक बनाए हैं, और इनकी वॉइस बहुत अच्छी लगी मुझे। वेरी नेचुरल, वेरी टची, इमोशन भी है, एक्सप्रेशन भी है, बहुत अच्छी वॉइस है आपकी बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इनका ये एल्बम अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। और जिस तरह का टैलेंट है तो उनका फ्यूचर के बारे में क्या कहना है, किस तरह फ्यूचर इनका देख रही हैं आगे? अच्छा ही फ्यूचर होगा, मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है। और आज के दौर में प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज डिजिटल हो गया है, आपका टैलेंट थोड़ा आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया। चैलेंज कितना है? चैलेंज तो देखिए सर, हर फील्ड में है, सिर्फ म्यूजिक के फील्ड में नहीं है। किसी फील्ड में आप तो चैलेंज तो एक्सेप्ट इनको करना पड़ेगा, इसको है ना। और मुझे लगता है ये करेंगी। ट्रैक अच्छे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पब्लिक शायद मेलोडी भी सुनेगी रैप के सिवा। देखिए, नेचर हैज़ अ सिंपल लॉ। आप जो करोगे वो पाओगे। अगर आप अच्छा काम करोगे, मेहनत करोगे, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। आई एम श्योर शी इज गोइंग टू डू वेरी गुड। जी देखिए, हमारे ज़माने में मेलोडी बहुत अच्छी थी, और पूरा मतलब मेलोडी का दौर था, वो दशक की मेलोडी का था। नदीम श्रवण वगैरह, आनंद वगैरह ने बहुत अच्छी मेलोडी बनाई थी। रहमान साहब ने भी डिजिटल के साथ मेलोडी को मेंटेन रखा था। पर आज का जो म्यूज़िक का दौर है, आप देख रहे हैं कैसा, मेरी तो समझ में नहीं आता कैसा दौर चल रहा है। फाइन, जो चल रहा है वो बिक रहा है, जो चल रहा है वो बिक रहा है। इस दौर में अगर मेलोडी को वापस लाने की कोशिश की जा रही है तो इट्स ए गुड कोशिश, वेरी गुड। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ कुछ लोग बोलते हैं एवोल्यूशन, और कुछ लोग मानते हैं कि इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। क्या होता है कि हम कहीं से शुरू होते हैं और फिर वहीं आ जाते हैं। तो जो नया दौर है, नई चीज़ें हैं, वो आई, वो कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस लेके आई हैं। बट ऑब्वियसली उसके एडवांटेजेस भी हैं। आजकल साउंड बहुत अलग हो गया है, बहुत चीज़ें हो गई, टैलेंट को बहुत प्लेटफॉर्म मिलने लगा है, बहुत सारी चीज़ें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक, जो जिसमें सुर और ताल और एक्सप्रेशंस हो, इट ऑलवेज वर्क्स। सो जैसे अभी हमने इनके गाने सुने, दे वर वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड आई एम श्योर दे वांट टू वर्क। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस क्या हो गया एल्बम में हम लोगों के 2 गाने हैं, पहनवी एंड आई मनीष। क्या हो गया जो टाइटल है वो हमारा गाना है, और एक तो है संगीत लगे। दोनों रोमांटिक जॉनर के गाने, और मेघना की वॉइस को बड़ा सूट करते हैं। थोड़ा जोर से। दोनों रोमांटिक जॉनर के गाने हैं, और मेघना की वॉइस को बड़ा सूट करते हैं। और ये दोनों गाने का लिरिक्स मैंने ही किया है। क्या हो गया गाना जो टाइटल रखा हुआ है, टीनेजर ग्रुप का गाना है, और यूथ को बड़ा अपील करेगा ये गाना। और जो मेघना की वॉइस में एक इनोसेंटनेस है, एक भोलापन है, वो इस गाने को बड़ा सूट करता है। इस सॉन्ग फर्स्ट लव, क्या हो गया, इस गाने के बारे में जो आपने लिखा है, क्या इंस्पिरेशन था और मेघना पे कितना सूट कर रहा है ये जो वर्डिंग है? लिरिक्स मोस्टली होते हैं, और दोनों गाने रोमांटिक गाने, और हमने इसमें फ्यूजन भी ऐड किया है। और बहुत ही रोमांटिक नोट से वही अलग सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हमारे पॉलिसी का हमें बहुत सपोर्ट है। मैंने कहा कि आप अपने हिसाब से हमें नहीं रखा कि आप अपना काम अच्छे से कीजिए, मेरा कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। हम लोग अपना जो बेस्ट हो सकता था, और मेघना ने बहुत ही अच्छा गया। हम भगवान से दुआ करते हैं कि बहुत आगे जाए, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर। इनकी सबसे मेन जो वॉइस में बात वो एक इनोसेंस, एक खुलापन जो मुकेश जी की आवाज़ में नजर आता है, वही चीज़ मुझे बहुत पसंद है। कैमरा
सके कि मेघना के को कितना सूट करता है ये सॉन्ग, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपका सवाल तो बहुत अच्छा और बहुत छोटा है, मगर ये जो जर्नी रही रिकॉर्डिंग के जो दौरान मिस्टर निकोलस जी, आप फिजी से आप सब जानते हैं, और कुछ सालों पहले ट्रैक की मेकिंग हुई, फिर मेघना ने तभी भी गाया था। फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि प्रदीप जी ट्रैक तो अच्छा बन गया है, ट्रैक को जस्टिफाई करना है। फिर मेघना ने बहुत रियाज़ किया, बहुत मेहनत की, और सब ये बहुत सुरीली है, जो हम जगह बताते हैं, कंपोजिशन बताते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से गाती हैं, समझ के गाती हैं। सोलफुल वॉइस है, एक आवाज़ में पाकीज़गी है। तो बस इन शॉर्ट ये कहूँगा कि इन्होंने जो सारे जितने भी गाने हैं, कोई दिल का फूल खिला है, फूल शबनम, मिलन तेरा मेरा, ये सारे सॉन्ग्स बखूबी गाए हैं और उसको एक सही अंजाम दिया मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा। और कैसे फ्यूचर देख रहे हैं इनका कि आगे का? काफ़ी यंग है तो काफ़ी ज़्यादा वक्त है इनको अपने को प्रूव करने के लिए। देखिए, सबसे हमारा इंटरेक्शन थोड़ा बहुत होता रहता है। मैंने जैसे पर्सनली देखा मेघना को, तो इनका जो पूरा ध्यान है वो पूरा म्यूज़िक की तरफ है। जैसे आजकल के जो लड़कियां हैं, नेचुरली वो लोग थोड़ा मोबाइल ज़्यादा देखना या इधर उधर घूमना, ये सब। लेकिन मेघना बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रैक्टिस, रियाज नहीं, ये एक बहुत बड़ी साधक है। Sir, what do you want to say? When did you got to notice that she can be a singer? When did you realize that? मेरे पास एक छोटा सा बैंड निकल कर है, और मेघना बचपन से सीखते आई, और मेघना जब 4 साल स्टेज पे आकर गाना वाना सब गाए। मेरे ख्याल से तेरा मुझसे पहले था नाता कुल, तो गाई। फिर उसके बाद हमारे पीजी में वहाँ पे हमारे अच्छे, बहुत अच्छे गुरु रहे, क्लासिकल सिखाते हैं, श्री विवेकानंद जी। उनके साथ मेघना को मैं जिताया, 2 साल तक सीखने लगी। उसके बाद मैंने सोचा कि और आगे बढ़ाएंगे, तो मैं शंकर महादेव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस से ये अभी इनको सीख रही है कर्नाटक क्लासिकल, और फिर अपना जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वो श्री प्रदीप पंडित जी से सीख रही है। अभी तो बहुत आगे जाना है। जो गाना है कोई दिल का फूल खिला है, पहली बार ये गाना मेरे ख्याल से 4 साल से बन के जब कंप्लीट हुआ गाना इतना बड़ा हो गया, मैं बोला कि मेघना को और रियाज करना। मेघना को 3 साल और अच्छे से रियाज करके तो जो कुछ गाया है, और मेरे ख्याल से सीजन कुछ जस्टिफिकेशन पर और अच्छे गा सकती है और आगे जा सकती है। अब रियाज करे हो जा रहे हैं। What about the song being backed up by a company like T-Series, one of the leading company in music industry? T-Series की बात करूँ तो बैकअप करी एल्बम को, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं मेघना, प्रदीप पंडित जी, नबी पंडित जी कि T-Series बहुत बड़े, और T-Series हम छोटे से पीछे आए और हमारा इतना इज्जत बख्शा, और मेघना को फेस ब्रेक दिया है इतना बड़े कंपनी में लॉन्च किया। थैंक यू।